شخص اصحاب پیغمبر کو تاریخی شخصیات سمجھ کر ان کو تاریخ کی تاریکیوں میں پہچاننا چاہتا ہے تو اس کی پہلی یہ اعتقادی غلطی ہے، پہلی ذہنی غلطی ہے، وہ ذہنی مریض ہے، وہ ذہنی مریض ہے، اعتقادی غلطی ہے اس کی۔ قرآن مقدس نے اصحاب پیغمبر کے وہ اوصاف بیان کیے کہ ایک ایک وصف میں ان کی تعدیل، ان کی توثیق، ان کی نجات، ان کی مغفوریت، ان کی محفوظیت، حتیٰ کہ ان کی معیاریت، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ تو میرے بھائیوں، وقت بڑا کم ہے، اس لیے میں صرف چند عنوان آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تاریخ کی کتابیں دیکھنے والے وہ بھی ذرا متوجہ ہوں کہ تاریخ دو قسم پر ہے۔ ایک وہ تاریخ جس کی مثال خالص کباڑ خانہ ہے، اور کباڑ خانے سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اس کا حکم نہیں، اور وہ کباڑی تاریخ، تاریخ کا کباڑ خانہ، جس طرح کباڑ خانوں میں مختلف گاڑیوں کے پرزے کوئی اچھے بھی مل جاتے ہیں، اکثر بیکار بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی پہچان ماہر پر چھوڑ دی جاتی ہے کہ یہ پرزہ کہیں کام کا ہے یا نہیں، یہ اچھا ہے یا نہیں۔ تو یہ تاریخ کا حصہ، ایسا تاریخ اور وہ کباڑ خانہ ہے جس پر ہر ایک آدمی نہ اس کو پہچان سکتا ہے اور نہ ہی اس کے حکم کو جان سکتا ہے۔ اور تاریخ کا دوسرا حصہ جو کتب معتبرہ میں آیا اور اہل سنت کی کتابوں کی زینت بنا، اس کے بارے میں ذرا اندازہ کرنا، وہ کیا ہے؟ تو یاد رکھنا، تاریخ جو محدثین کی تاریخ ہے، یا متکلمین کی تاریخ ہے، یا فقہا کی تاریخ ہے، یہ تین طبقات، متکلمین ہوں تب، فقہا ہوں تب، محدثین ہوں تب، تینوں کے ہاں اصحاب پیغمبر کے متعلق یہ متفق علیہ فیصلہ، طے شدہ فیصلہ، اتفاقی فیصلہ موجود ہے کہ کسی صحابی پہ جرح کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ کوئی بڑے سے بڑا آدمی صحابی کے احوال پہ جب آتا ہے، چاہے وہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ للہ، ہمارے بس میں ہماری حیثیت نہیں صحابی پر تبصرہ کرنے کی، ان کی عدالت اللہ کے قرآن نے بیان کر دی ہے۔ تمام طبقات امت اس بات پر متفق ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، خطیب بغدادی اس کی الکفایہ اٹھائے، ابن حجر الاسقلانی الاصابہ، عمدۃ القاری، فتح الباری، شرح ابن بطال، اور اسی طرح اگر علماء عقائد کی طرف آنا چاہتا ہے، ارشاد الطالبین قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی الصارم المسلول، اور امام ابن تیمیہ کی الصارم المسلول، قاضی ثناء اللہ کی الصارم المسلول، دونوں کتابیں یہ اسی طرح مسامرہ، مسایرہ، کتب عقائد متکلمین کی، سب اس بات پہ متفق ہیں کہ اہل السنت والجماعت اس نقطہ پر متفق ہے، جمع ہے کہ سب صحابہ عادل ہیں، اور صحابہ کے احوال کتب میں نہیں دیکھے جائیں گے،
अहवाल रावियों से नहीं पूछे जाएंगे, सहाबा के अहवाल काला फुला हुकिया अन फुला कीला फुला इससे नहीं देखे जाएंगे। जब सहाबी का मामला आएगा तो अल्लाह का असहाबे पैगंबर की इस अदालत पर खतीब बगदादी ने 8 आयात से इस्तेदलाल किया और मैंने कहा 700 वो आयात थे जिसमें अदालत सहाबा भी साबित और सहाबा के सब औसाफ 25 उन्वान के तहत 25 अबवाब के तहत सब के सब औसाफ साबित। इसलिए मेरा भाई मैंने अर्ज ये किया है कि ये तारीख उसूल हदीस की, ये तारीख उसूल अकायद की, ये तारीख उसूल फुकहा की, ये तारीख जो सच्ची तारीख अक्सर होती है ये बोल बोल के कहती है कि सहाबा का मामला वो तारीख का नहीं है, सहाबा का मामला है वो किताबुल्लाह का। कुरान को देखा जाएगा, इसी को पीरे तरीकत रहबर शरीयत वलिय कामिल सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने एक मुख्तसर जुमला में जिक्र किया। फरमाया लोगों सहाबा को देखना है, गंदी मक्खी न बन। सहाबा को देखना है, गंदी मक्खी न बन। गंदी मक्खी गंदगी पे बैठती है, अगर सहाबा को देखना है तो शहद की मक्खी बन। शहद की मक्खी खुशबूदार फूलों पे बैठती है। मकसद क्या है? सहाबा को देखना है, पहचानना है। तारीख की तरह मत जा, चाहे वो तारीख अलबिदाया हो, चाहे वो तारीख इब्ने असीर हो, चाहे वो तारीख दुनिया की कोई तारीख हो। तारीख तारीख है। सहाबा को देखते हुए गंदी मक्खी न बनना, असहाबे पैगंबर को देखना है तो शहद की मक्खी बन और किताब व सुन्नत के फूलों में तलाश कर। ये वो जुमला है जिसका मैंने उन्वान आपके सामने रखा कि असहाबे पैगंबर तारीखी शख्सियात नहीं। और फिर इससे आगे बढ़ता हूं, शायद किसी को तकलीफ भी हो। असहाबे पैगंबर का मामला ये वो मामला है जो नुसूस से कतईया से उनका ईमान, उनकी सदाकत, उनकी सिकाहत, उनकी अदालत, उनका रुश्द, इस्तिकामत अलल ईमान नुसूस से कतईया से साबित है। अगर बुखारी और मुस्लिम में, अगर सियाह सित्ता में कोई ऐसी रिवायत आ जाए खबरें वाहिद होने की हैसियत से जो किसी सहाबी पे अदालत पे इतराज बनती हो, अदालत पे जरा बनती हो और सहाबी को बदनाम करती हो, मुफ्ती मोहम्मद शफी मकामे सहाबा में लिखते हैं। इसी तरह और हजरात ने लिखा, फरमाया वो रिवायत तो मरदूद होगी। सहाबा की अजमत ये कुरान मुकद्दस की नस्खती से साबित है। इसलिए खबरे वाहिद का मकाम भी कुरान के मुकाबला में कोई हैसियत नहीं रखता। अब जरा आओ इस कानून पे। आलू सुन्नत का ये अकीदा है और इसको मैं खुद कुरान से भी दिखा सकता हूं। इन्ना ज़न्ना ला युगनी मिनल हक़ शैया। रुहुल मानी उठा, माजदी उठा के देख लो, माने दो किए। एक ये कि इन्ना ज़न्ना ला युगनी मिनल हक़ शैया, हक से मुराद अकीदा और मतलब ये है इन्ना ज़न्ना ज़न्नी दलील इस बात अकीदा में काम नहीं आती। और दूसरा माना ज़न्नी दलील कती का मुकाबला नहीं कर सकती। इसी से बड़े बड़े आइम्मा ने यही ज़ाब्ता लिया कि खबरे वाहिद
कतईयत का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम तो तारीख का हवाला देते हो। असहाबे पैगंबर का मकाम वो है, असहाबे पैगंबर की अजमत वो है कि वो अजमत नुसूस कतईया से साबित। अगर इन नुसूस कतईया के मुकाबल बड़ी से बड़ी किताब से कोई खबरें वायद आए जो सहाबा पे जराबंदी हो और सहाबा किराम की अदालत के खिलाफ हो, वो खबरें वायद तो इस उसूल पर छोड़ दी जाएगी, लेकिन सहाबा की अदालत मानी जाएगी कुरान ने जो बयान की है। ये मेरा पहली बुनियाद है कि सहाबा को कुरान में देखना है। एक, कुरान ने क्या बयान किया? दुनिया में हर शख्स, उसका ईमान, उसकी दलील, उसका अपनी जुबान है, उसकी शहादत उसकी अपनी जुबान है। और असहाबे पैगंबर वो जमात है जिनके ईमान के गवाह, ईमान की शहादत देने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत है। और हर मकाम, जो मकाम भी आया, उनके ईमान की गवाही अल्लाह ने दी है। आप देखें, फतह मक्का से पहले, अब बकतरी में सबकी तफसील में जाऊं, पहले जो ईमान लाए, कुरान ने उन्हें मोमिन कहा जिन्होंने हिजरत की, कुरान ने उन्हें मोमिन कहा जिन्होंने नुसरत की, कुरान ने उन्हें मोमिन कहा जो बदर में पहुंचे, कुरान ने उनको मोमिन कहा जो ओहद में पहुंचे, कुरान ने उनको मोमिन कहा जो खंदक में पहुंचे, कुरान ने उनको मोमिन कहा जो हुनैन में आए, कुरान ने उनको मोमिन कहा जो पैगंबर के बाद खलीफा बने, कुरान ने उनको मोमिन कहा। और ये ईमान भी कैसा, आज सिर्फ दुनिया में शहादत नहीं, कुरान बोला यौम ला युखजिल्लाहु नबिय्या बल्लज़ीना आमनू, दुनिया में भी मोमिन हैं और क़यामत के दिन उठेंगे तब भी मोमिन होंगे। बाकी दुनिया का कोई मौलवी, कोई जाकिर, कोई सियासी लीडर, उसके ईमान की शहादत का इतबार उसकी जुबान पे किया जाता है, लेकिन असहाबे मोहम्मद वो जमात है जिनका ईमान कुरान ने साबित किया। और सिर्फ साबित नहीं किया, दुनिया में बड़े से बड़ा वली हो, मुत्तकी हो, सूफी हो, बुजुर्ग हो, उसके ईमान की गारंटी कोई नहीं दे सकता। ये दूसरा नुक्ता है, गारंटी नहीं मिल सकती। इस कायनात में फकत असहाबे मोहम्मद मुस्तफा की वो जमात है जिनका ईमान गारंटी शुदा ईमान है। बाकी किसी, कोई इमाम हो, कोई बड़े से बड़ा हो, उसके ईमान की सनद अल्लाह ने नाजिल नहीं की, उसके ईमान की गारंटी उसके साथ हुस्ने ज़न तो रख सकते हैं, उसके साथ अच्छा गुमान तो रख सकते हैं, लेकिन उसके ईमान की सनद, उसके ईमान की गारंटी हम नहीं दे सकते, इसलिए कि अल्लाह ने सनद नाजिल नहीं की। असहाबे मोहम्मद की वो जमात है जिनके ईमान की अल्लाह ने सनदें उतारी है। कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान अलज़महुम कलिमतत तक़वा इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। ये कुरान है। कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, इनके सीनों में ईमान लिखने वाला अल्लाह। अलज़महुम कलिमतत तक़वा, अल्लाह ने कलमे तौहीद को इनके साथ लाजिम कर दिया। इम्तहनल्लाह, अल्लाह ने
इनके दिलों को साफ किया, मांझा, इम्तिहान लिया। इम्तिहाना दो माने मुफस्सिरीन ने किए। एक माना किया अखलसल्लाह, दूसरा माना किया इख्तसल्लाह। अखलसल्लाह, अल्लाह ने सहाबा के दिलों को साफ किया। कुलूबहुम लित्तक़वा, उनके तकवा और ईमान के लिए। और फरमाया कर्रा इलैकुमुल कुफ्रा बल फुसूका बल इस्यान। और इससे पहले क्या है? फरमाया हब्बबा इलैकुमुल ईमान अल ईमान, ऐसे ईमान इनके सीनों में सजा दिया, ऐसे ईमान इनके सीनों में लिख दिया, ऐसे ईमान इनके दिलों में खास कर दिया। फरमाया अल ईमान, वो कामिल ईमान ऐसा ईमान है कर्रा इलैकुमुल कुफ्रा बल फुसूका बल इस्यान। तीन चीजों की मेरे रब ने गारंटी दे दी। किसी सहाबी के दिल में फिस्क भी नहीं आ सकता, इस्यान भी नहीं आ सकता, कुफ्र भी नहीं आ सकता। ये तीन चीजें ऐसी हैं, कुफ्र, इस्यान नाफरमानी, इस्यान खुरूजुल हद अनिल कसद, जानबूझकर अल्लाह रसूल की हद तोड़ना, फिस्क। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो सहाबा के करीब आ नहीं सकती। क्यों? हब्बबा इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ने उनके सीनों में ईमान को ऐसे महबूब कर दिया। हब्बबा का बाप भी देख लो, कर रहा का बाप भी देख लो। ये हब्बबा का बाप, कर रहा का बाप, ये बता रहा है कि ये तीन चीजें दूर करना, एक चीज उनके सीने में पुख्ता करना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो ऐसा जोर वाला फेल है। सारी दुनिया मिल जाए, वो तीन चीजों में से कोई चीज असहाबे मोहम्मद के करीब ला नहीं सकती, और ईमान उनके सीनों से मुतजलजल कर नहीं सकती। इसी की वजाहत करते हुए फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुर राशिदून। इसका यह माना नहीं कि वो हिदायत पे आए, उनकी हिदायत पे आना ये तो सारी दुनिया, काफिर को भी पता है, मोमिन को भी पता है, ये तो मुनाफिक को भी पता है, मुखलिस को भी पता है, ये तो मुहिब को भी पता है, मुबगिद को भी पता है। ये अल्लाह ने नहीं बताया कि वो हिदायत पे आए। उलाइका हुमुर राशिदून, कुर्तुबी उठा, रुहुल मानी या कोई लुगत की किताब, रशदा किसको कहती है? रशदा वो चट्टान है जिसको सारे लोग मिलके जोर लगाएं, लेकिन चट्टान अपनी जगह से हिल न सके। अल्लाह ने फरमाया और कायनात वालों, ये हिदायत पे सिर्फ आए नहीं, अल इस्तिकामत अलल हक मअत तसल्लुब भी, ये हिदायत पे सुनवान से आए हैं। सारी कायनात अपने महवर से बदल सकती है, मोहम्मद का सहाबी हिदायत की पटड़ी से उतर नहीं सकता। उलाइका हुमुर राशिदून, ये आयत बता रही है कोई सहाबी हिदायत की पटड़ी से उतर नहीं सकता। उलाइका हुमुर राशिदून, ये राशिदून हैं, और राशिद का माना अल इस्तिकामत अलल, मजबूती हो, और ये ऐसे हक के शाह सवार हैं। और शुरू में फरमाया उलाइका रब्बिहिम अला, उलमा जानते हैं अला लिल इस्तिअला, अला इस्तिला के लिए अल्लाह फरमाती है ओए कायनात वालों, इस्तिला जिस तरह ड्राइवर
जो स्टीयरिंग पे बैठा है, घोड़े की बाग है। अब वो जिधर घोड़े को मोड़े, सवारी को मोड़े, सवारी उधर मुड़ती है। अल्लाह फरमाते हैं, ओए कायनात के लोगों, जिस तरह वो सवार जिस तरफ सवारी को मोड़े, सवारी उधर मुड़ती है। मोहम्मद मुस्तफा के सहाबा वो हैं, जहां ये कदम रखते हैं वही हिदायत के नकश बनती है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। या अल्लाह, ये नकश आरज़ी है, कुछ देर तक होंगे फिर खत्म हो जाएंगे। फरमाया नहीं, उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही कामयाब लोग हैं। अब इसी को अनुमान दिया कुरान ने। फरमाया इस्तिकामत अलल ईमान, इनका ईमान गैर मुतज़लज़ल, गैर ज़वाले पज़ीर, हमेशा रहने वाला, दुनिया में अभी के ईमान में तसल्जुल नहीं आता। इसलिए मेरा भाई, अल्लाह के कुरान ने वज़ाहत कर दी। तीसरी बात यह है कि हर एक आदमी, चाहे जितना नेक हो, जितना बुजुर्ग हो, उसके इखलास अंदर के तज़किरे सबसे ज्यादा किए हैं। क्योंकि अल्लाह को पता था असहाबे मोहम्मद का जाहिर इतना पाक है, कोई काफिर से काफिर भी उनके जाहिर पे बकवास नहीं कर सकता, तबर्रा नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह ने ज्यादा बयान करता है। फरमाया तराहुम रुक्कान सुज्जदा, इसका ताल्लुक जाहिर के साथ है। ऐ देखने वाला, तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तो देखेगा रुकू करते हुए, सजदे करते हुए। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, ये रुकू जाहिर होता है, ये सजदा जाहिर होता है। आंखों से रोयत के साथ ताल्लुक है, रुकू का भी सजदा का भी। लेकिन देखता हूं और मुझसे पूछ लो, इनके सजदे क्यों, इनके रुकू क्यों? फरमाया यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, यब्तगूना फज़लन मिनल्लाह व रिज़वाना। उनका जाहिर जिया की रजा के लिए उनकी हिजरत देखनी हो तब भी यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, उनके सजदे देखने हूं यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, उनके रुकू देखने हूं यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। उनके दिलों की तड़प और तमन्ना ये है अल्लाह राजी हो जाए। ये वो इखलास है जो दुनिया में बाद असहाबे मोहम्मद मुस्तफा वो जमात है जिनका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जाहिर का उनके बातिन की अल्लाह ने शहादतें पेश की है। तो कुरान मुकद्दस ने असहाबे पैगंबर का हर लिहाज से उनकी अदालत, उनकी मगफूरियत, उनके फज़ाइल, उनके औसाफ और दूसरा धोखा ये था कि वो भी उम्मती हैं, हम भी उम्मती हैं। अगर उम्मती उम्मती पर तनकीद कर ले तब क्या है, वो उम्मती हम भी, ये दूसरी गलती, दूसरी बुनियाद। मैंने कहा वो उम्मती हैं, लेकिन मेरे नबी ने उनको एक खास उनका मकाम बयान किया। अल्लाह ने भी उनका एक मकाम बयान, उम्मती हो, और वो उम्मती भी हैं और सहाबी भी है। और ये सहाबियत की डिग्री, ये कोई मामूली डिग्री नहीं, ये कोई मामूली मनसब नहीं। पैगंबर करीम ने इसी को बयान किया, खुद कुरान ने बयान किया। जहां दलाइल और बराहीन नबूवत की बात आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगंबर के मौजज़ात को भी बयान किया, पैगंबर की तालीमात को भी बयान किया, पैगंबर के अखलाक को भी बयान किया। लेकिन सबसे बड़ी बुरहान नबूवत के तौर पे सूरतुल फतह देख ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा के अहवाल, उनके औसाफ बयान किया।
वल्लज़ीना माअहू, इस माइयत में रखा। जैसे फरमाया यौम ला युख्ज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माअहू, वहां पर भी उस माइयत में सब कुछ रखा। और इस माइयत की वज़ाहत खुद मेरे नबी ने की। फरमाया लोगो अक्रेमू असहाबी, सारा राज है इस असहाबी, अक्रेमू असहाबी। ओए लोगो मेरे सहाबा की इज्जत करो। क्यों? इसलिए कि ये मेरे हैं, ये मेरे सहाबा हैं। और अगर आप वो मुस्लिम शरीफ की हदीस की तरफ जाएं कि हम आपके भाई नहीं, आपने फरमाया अंतुम असहाबी, अंतुम असहाबी। वक़्त नहीं, अगर इसी नुक्ते पे गौर किया जाए तो ये हदीस वो शान वाले उम्मती हैं, वो एक मकाम और सहाबियत के डिग्री वाले उम्मती हैं। यही वजह है कि वो जो सोहबत मुहम्मदी, निस्बत सोहबत की डिग्री है, ये इतनी बुलंद है कि लाखों साल का आबिद हो और बेरिया आबिद हो, वो एक घड़ी का मुकाबला नहीं कर सकता जो ईमान की हालत में सोहबत मुहम्मदी मिल जाए। ये वो सा, ये वो लम्हा, एक लम्हा हो उसके मुकाबिल करोड़ साल की इबादत हो और अरबों सालों की इबादत हो। वो जो लम्हा ईमान वाला, पैगंबर की मुलाकात हो गई, पैगंबर की सोहबत की निस्बत हासिल हो गई, ये वो डिग्री है जो सारी उम्मत से उनको ऊंचा कर रही है। यही बात है मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम में से कोई ओद पहाड़ जितना सोना खर्च करे, पहली बात तो है ओद पहाड़ जितना सोना कहीं है सही? अभी सोना नहीं, लोहा और पीतल भी नहीं, गंदम भी नहीं, जो और वो भी मुद जो उसका नसीब वो खर्च। करीम ने फरमाया बाद में आने वाले करोड़ों साल के अमाल लेके आए, लेकिन ये खुश नसीब जिसको ईमान की हालत में मेरे पैगंबर की सोहबत नसीब हो गई, ये सोहबत की निस्बत इतनी बुलंद है कि करोड़ों से मेरे पैगंबर ने ये खास खिताब, इस डिग्री का तज़किरा कई मकाम जब दिफाए सहाबा का बयान आया, पैगंबर करीम ने इसी निस्बत का तज़किरा किया और फरमाया अक्रेमू असहाबी ला तसुब्बू असहाबी अंतुम असहाबी अल्लाह अल्लाह फी असहाबी। ये असहाबी का वो डिग्री है जो सहाबा को आम उम्मती से मुमताज कर रही है। लिहाजा ये दूसरी गलतफहमी कि वो भी उम्मती हम भी उम्मती तनकीद करें तब क्या होगा, तो ये दूसरा बुनियादी फिक्र आदि गलती थी। मैंने आज ये किया, सहाबा तारीखी शख्सियत उम्मत भी है, इसलिए किसी उम्मती को किसी सहाबी पर तनकीद करना, किसी सहाबी पे जरा करना, किसी सहाबी की इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ, तीनों आइम्मा और उम्मत के सरखेल, इनकी किताब जो तीनों के अकीदे का बयान अकीदा तहाबिया, वहां पर असहाबे पैगंबर के मुताल्लिक जो अकीदा लिखा है उसका खुलासा ये है नुहिब्बुहुम वला नुबग़िज़ुहुम, हम सब सहाबा के साथ मोहब्बत करते हैं, किसी सहाबी के साथ बुग़्ज़ नहीं रखते। आगे फरमाया हुब्बुहुम ईमानुन व ईकानुन व एहसानुन। ऐ लोगो अगर पूरा कुरान मुताला करो, पैगंबर का फरमान, ये तीन मकाम है सआदत के, ईमान,
ईकान, एहसान। फरमाया ये तीनों दर्जे सहाबा की मोहब्बत है। और फरमाया बुग़्ज़ुहुम, सहाबा के साथ बुग़्ज़ रखना, तबर्रा करना दूर की बात, तनकीद करना दूर की बात, किसी सहाबी से बुग़्ज़ रखना। 3 फतवे लगाए। बुग़्ज़ुहुम सबसे हल्का फतवा, कुफ्रुन, किसी सहाबी से बुग़्ज़ रखना ये कुफ्र है, निफाकुन और मुनाफकत है, बतुग़यानुन और सरकशी की इंतहा है। तुग़यान भी, निफाक भी और कुफ्र भी। तीनों फतवे लगाए। इमाम अबू ज़ुर्रा अर्राज़ी जो मुहद्दिसीन का इमाम है, बड़ा मुहद्दिस, उनके लफ्ज़ हैं, इज़ा राईतर रजुला यंतकिसु अहदन मिन असहाबे रसूलिल्लाह फ़अलम अन्नहु ज़िंदीकुन। जब तू देखे कि कोई आदमी किसी सहाबी पे तबर्रा कर रहा है, चाहे हजरत मुआविया पे कर रहा है, हजरत सिद्दीक पे कर रहा है, किसी एक सहाबी पर तबर्रा और तनकीद कर रहा है, फ़अलम अन्नहु ज़िंदीकुन, समझ ले कि वो आदमी जिंदीक है। इमाम सरक्सी आनाफ का बड़ा इमाम फरमाते हैं, इज़ा राईतर रजुला यंतकिसु अहदन मिन असहाबे रसूलिल्लाह फ़अलम अन्नहु मुल्हिदुन, समझ ले जो सहाबी पे तबर्रा करे वो मुल्हिद है। और ये फतवा इमाम मालिक का भी है और ये फतवा खुद कुरान में है। अल्लाह ने अज़मत असहाबे रसूल बयान करते हुए वहां फरमाया, ले यगीज़ बिहिमुल कुफ़ार, सहाबा की अजमत इसलिए बयान की ताकि काफिरां दे दिल सड़े, उनके दिल सड़े, उनको वो जले, और पैगंबर और पैगंबर के मानने वाले उनके दिल बाग बाग हों, और जो काफिर हैं उनके दिल जले। अल्लाह ने बता दिया, असहाबे पैगंबर की तनकीस करने वाला, उन पे तबर्रा करने वाला, उनकी तकफीर करने वाला, उन पर इल्जामात और बोहतान लगाने वाला, वो मुसलमान नहीं, वो अल कुफ़ार का फर्द है। और अल्लाह ने उनकी अज़मत बयान इसलिए की है ताकि काफिरों के दिल जलाए। व आखिरु दावा।